Hello everyone. Now we'll discuss about the compiler design, and in the compiler design we'll discuss about the recursion. So here it is, recursion. So recursion, we can say there can be the left recursion or right recursion. Left recursion, or there can be the right recursion, right? Left recursion or there can be the right recursion. Let's see what is left recursion and what is the right recursion. So here a grammar is given that a goes to a, alpha, and then beta, right? So beta is nothing but a terminal here, and here it is a and alpha, right? So what is left recursion? Left recursion means that this is what the start of the production, and here in the right hand side, that right hand side, that leftmost element that is the same element as this one. Okay, they both are same, then we can say that there is a left recursion. ठीक है, इसका मतलब यहाँ से ए क्या डिराइव कर रहा है, ए के करस्पॉन्डिंग ये वाला प्रोडक्शन है, ए गोज टू ए एल्फा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला और ये वाला दोनों क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, और ये इस प्रोडक्शन का क्या है, लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है, और लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट दैट इज द वेरिएबल, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज ए लेफ्ट रिकर्जन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देयर इज द लेफ्ट रिकर्जन। व्हाट अबाउट द राइट रिकर्जन? if this is the grammar, it is a goes to alpha, a goes to alpha, just a minute, a goes to alpha, then a, right? Or it can be beta. So in this case, here it is the right recursion, means this element and this element, this is the rightmost element of this production, right? A is what, rightmost element of this production, right? And this one, this a and this a, they both are same, then we can say there will be the right recursion. ठीक है, इसका मतलब ये ए क्या डिराइव कर रहा है, अल्फा ए को डिराइव कर रहा है, राइट? तो इसका मतलब यहाँ पे ये वाला एक प्रोडक्शन है, और इसका जो राइट मोस्ट एलिमेंट है वो क्या है, दैट इज सेम एज दिस वन। ये दोनों क्या है, सेम है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, राइट रिकर्जन। ठीक है, तो इस ग्रामर में क्या हो रहा है, देर इज द राइट रिकर्जन। ओके, सो इफ देर इज ए right recursion and there is a left recursion, then what will happen? If there is a left recursion, then what will happen, this a can be replaced with a and alpha, again a can be replaced with a and alpha, a can be replaced with a and alpha, right? And finally this a can be replaced with beta. Okay, so what it is generating, initially क्या generate करेगा, it will generate beta, after that it will generate alpha, again it is generating alpha, again it is generating alpha, and so on, right? So finally what it can generate, it can generate beta, after that alpha star। ठीक है, तो इससे क्या जनरेट होगा, बीटा, और उसके बाद क्या हो सकता है, अल्फा स्टार। अल्फा स्टार का मतलब क्या हो गया, दैट दैट इट कैन जनरेट सिंगल बीटा, बिकॉज इसकी पावर जीरो कर दी जाए तो बीटा जनरेट होगा, बीटा देन अल्फा, बीटा देन टू टाइम्स अल्फा, बीटा देन थ्री टाइम्स अल्फा, एंड सो ऑन, राइट? तो इस टाइप की लैंग्वेज क्या होगी, जनरेट होगी यहाँ से, राइट? एंड व्हाट अबाउट दिस वन, इसमें कौन से वाली लैंग्वेज जनरेट होगी? सो लेट्स सी, हियर ए कैन बी रिप्लेस्ड विद अल्फा एंड ए, alpha a, further this a can be replaced with alpha
alpha a. Again a can be replaced with alpha a, and this a can be replaced with beta finally, right? So what it will generate, it will generate alpha, after that again alpha, after that beta, and finally this is the language, okay, or this is the string. So finally किस तरह की लैंग्वेज जनरेट होगी यहाँ पे? इट विल जनरेट द alpha star then beta, right? So simply it can generate beta. How? A can be replaced with beta, right? A can be replaced with beta, तो ये बीटा जनरेट कर सकता है. उसके बाद सिंगल अल्फा बीटा, 2 टाइम्स अल्फा बीटा, 3 टाइम्स अल्फा बीटा एंड सो ऑन. तो इस तरह की लैंग्वेज यहाँ से जनरेट होगी. So is it clear till this point? Yes. Okay, fine. So let's see the next thing. What will happen in case of left recursion, right? अगर इसको as a function लिखा जाए, right? If we write down this one as a function, then what will happen? So here it can be written as that a is a function, right? After that again inside there a is a function, after that inside there also it is a function, and after that there will be the alpha, आफ्टर दैट देर विल बी एल्फा, राइट? तो इस तरह का फंक्शन यहाँ पे बनेगा. तो इस तरह का फंक्शन बनेगा. तो इस केस में क्या बन जाएगा? देर बिकम द इनफाइनाइट लूप. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट लूप. एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा. कैसे बन जाएगा? जैसे कि यहाँ पे ये वाला फंक्शन है, राइट? तो ये वाला फंक्शन है, यहाँ ये वाला फंक्शन जब एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ से फंक्शन कॉलिंग होगी, राइट? तो फिर से ए को कॉल किया जाएगा. ए को कॉल किया जाए तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, ये वाला एग्जीक्यूट होगा तो फिर से ए को कॉल किया जाएगा, राइट? फिर यहाँ से ये वाली फंक्शन कॉल होगी तो फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट? तो ए की डेफिनेशन में जाएंगे, यहाँ पे फिर से ए की कॉलिंग होगी एंड इट विल कीप ऑन डूइंग दिस वन, राइट? सो फाइनली क्या कह सकते हैं यहाँ पे? इट विल गो टू द इनफाइनाइट लूप, राइट? इफ इट इज अ लेफ्ट रिकर्जन दैट इट विल गो टू द इनफाइनाइट लूप. अगर लेफ्ट रिकर्जन होगा तो ये कहाँ पे जाएगा? इट बिकम्स द इनफाइनाइट लूप. बट व्हाट अबाउट राइट रिकर्जन? सो राइट रिकर्जन में क्या होगा? इन राइट रिकर्जन if there is a function a, then firstly there will be alpha. तो पहले क्या होगा? अल्फा होगा. आफ्टर दैट इट विल डू द फंक्शन कॉल. तो पहले क्या कर लिया जाएगा? कुछ समथिंग वहाँ पे कंडीशन वगैरह चेक कर ली जाएगी और उसके बाद क्या होगा? ये फंक्शन कॉलिंग होगी, राइट? सो इन दिस केस देर इज नो इनफाइनाइट लूप. मतलब पहले कंडीशन चेक कर ली जाएगी यहाँ पे और उसके बाद क्या होगा? फंक्शन आगे प्रोसीड करेगा. इसका मतलब क्या होगा? कि देर इज नो इनफाइनाइट लूप, नो इनफाइनाइट लूप. तो इस केस में इनफाइनाइट लूप नहीं बनेगा. बट इस केस में इनफाइनाइट लूप बन रहा है बिकॉज कंडीशन जो होगी, कंडीशन चेक की जाएगी, वो कंडीशन यहाँ पे चेक कर रहे हैं. बट यहाँ कंडीशन तक तो हम जा नहीं पा रहे, फिर से कॉल हो जाता है, राइट? फिर से कॉल होगा तो फिर से सेम प्रोसीजर फॉलो होता रहेगा और इनफाइनाइट लूप में चले जाएंगे, राइट? सो फाइनली इससे क्या कंक्लूड किया जा सकता है? वी कैन कंक्लूड दैट language generated by the left recursion or left recursive grammar, right, that is not equal to the language generated by right recursive grammar, right? So language
generated by left recursive grammar is not equal to language generated by right recursive grammar. Okay, so is it clear to all? So is it clear to all till this part? Okay, fine. Okay, ठीक है. So next we'll discuss about the removal of left recursion. Removal of left recursion. So why we are doing the removal of left recursion? तो उसके पीछे रीजन ये है कि जैसे अभी रिकर्जन के बाद क्या करेंगे, विल डिस्कस अबाउट द पार्सर. ठीक है, तो पार्सर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे होता है एक टॉप डाउन पार्सर, राइट. ये जो टॉप डाउन पार्सर है, ये क्या नहीं कर सकता, इट कैन नॉट हैंडल लेफ्ट रिकर्जन. तो ये जो टॉप डाउन पार्सर है, ये क्या नहीं हैंडल कर सकता, इट कैन नॉट हैंडल द लेफ्ट रिकर्जन. लेफ्ट रिकर्जन को हैंडल नहीं कर सकता. ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू डू द रिमूवल ऑफ द लेफ्ट रिकर्जन फ्रॉम द ग्रामर. तो ग्रामर से लेफ्ट रिकर्जन को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा. लेट्स सी द रिमूवल. So here it is a goes to बीटा अल्फा स्टार. बीटा अल्फा स्टार मतलब हमने देखा था कि ये लेफ्ट रिकर्सन में कैसी लैंग्वेज जनरेट होती है, दैट इज बीटा अल्फा स्टार. बट दिस इज नॉट द ग्रामर, बिकॉज ग्रामर में हम ऐसे नहीं कर सकते कि बीटा और वहाँ पे स्टार कर दिया, राइट. बीटा अल्फा करके स्टार कर दिया, ये पॉसिबल नहीं है. तो इसका फॉर्मेट क्या रहेगा ग्रामर में, ग्रामर में ये कुछ इस तरीके से रहेगी, दैट यहाँ पे हमें क्या चाहिए, बीटा आफ्टर दैट अल्फा स्टार, राइट. सो वी कैन से हियर इट इज ए गोज टू बीटा, right, beta. After that we require the alpha star. Alpha star means we can take a dash here, right. तो बीटा a dash, और a dash क्या जनरेट करेगा, अल्फा स्टार को जनरेट करेगा. नाउ a dash that will generate alpha star. alpha star का मतलब क्या हो गया, alpha then a dash, alpha then a dash, right. तो यहाँ पे ये हो गया, और आफ्टर दैट इट इज नल, राइट. तो फाइनली क्या हो जाएगा, हियर इट इज नल. तो यहाँ से अल्फा की जगह अगर मैं ऐसे करता कि ए गोज टू ए एंड नल, यहाँ से क्या जनरेट होगा, कैसी लैंग्वेज जनरेट करेगा, इट विल जनरेट ए स्टार जनरेट करेगी, राइट. ऐसे ही क्या कर दिया, ए की जगह अगर अल्फा कर दिया जाए यहाँ पे, तो क्या जनरेट करेंगे, अल्फा स्टार जनरेट करेंगे. तो हमने क्या कर दिया, यहाँ से अल्फा स्टार जनरेट कर दिया, राइट. और इस प्रोडक्शन की हेल्प से क्या हो जाएगा, बीटा देन अल्फा स्टार, राइट. फाइनली दिस इज व्हाट द ग्रामर, राइट. तो ये क्या है, ग्रामर है, किसके कॉरस्पॉन्डिंग, ये एक राइट रिकर्सिव ग्रामर है. दिस इज व्हाट द राइट रिकर्सिव ग्रामर फॉर दिस लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर. ये वाली जो लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर थी, दैट इज ए गोज टू ए अल्फा देन बीटा, राइट. तो यहाँ से ये लेफ्ट रिकर्सिव, अगर हमारी लैंग्वेज ये वाली है,
दैट बीटा अल्फा स्टार, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्रामर अगर बनाएंगे तो ये बन जाएगी ना, ए गोज टू ए अल्फा, राइट, ए गोज टू ए अल्फा देन बीटा, राइट। ये लेफ्ट रिकर्सिव, तो हम क्या जनरेट कर सकते हैं, सिंगल बीटा, तो बीटा यहाँ से जनरेट हो जाएगा। अल्फा स्टार यहाँ से बन जाएगा। बट ये लैंग्वेज कैसी है, दिस सॉरी ग्रामर कैसी है, दैट इज द लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर, राइट। तो इस लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली क्या बन गई, दैट इज द राइट रिकर्सिव ग्रामर, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या बना दी, राइट रिकर्सिव ग्रामर बना दी। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से लेफ्ट रिकर्सन जो था वो क्या हो गया, रिमूव हो चुका है, राइट। नाउ दे बोथ आर इक्विवेलेंट, बट इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये लेफ्ट रिकर्सिव है, और यहाँ पे हमने क्या बना दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, राइट रिकर्सिव ग्रामर में। ओके, तो ये वाली क्या है, इसके इक्विवेलेंट राइट रिकर्सिव ग्रामर बनेगी। सो इज इट क्लियर टिल दिस पार्ट? अल्फा ए डैश कहाँ पे, यहाँ पे, ये एक्चुअल में हमने क्या किया है, यहाँ से हमने क्या किया, अल्फा स्टार जनरेट किया है। अल्फा स्टार कैसे जनरेट करेंगे, इसी से करेंगे ना, अल्फा देन ए डैश देन नल, ऐसा करने से क्या होगा, अल्फा स्टार जनरेट हो जाएगा और बीटा यहाँ से आ जाएगा। अगर मैं इस ए डैश को क्या कर दूँ, ऐसे रिप्लेस किया जा सकता है ना, ए को किससे रिप्लेस किया जा सकता है, बीटा ए डैश से, है ना। और इस ए डैश को किया जा सकता है, नल से रिप्लेस किया जा सकता है। तो ये क्या जनरेट करेगा, बीटा, राइट, बीटा देन नल, राइट। तो बीटा देन नल का मतलब क्या हो गया, बीटा, इसका मतलब बीटा जनरेट कर देंगे यहाँ से, और अल्फा स्टार भी जनरेट, अल्फा स्टार यहाँ से हो जाएगा, ठीक है ना। अल्फा स्टार ऐसे हो जाएगा कि ए डैश है, इसको रिप्लेस कर दिया किससे, ए डैश को रिप्लेस कर दिया बीटा अल्फा स्टार से, सॉरी बीटा ए डैश से, और उसके बाद क्या कर दिया, इस ए डैश को रिप्लेस कर दिया किससे, अल्फा ए डैश से, अगेन ए डैश को क्या कर दिया, अल्फा ए डैश से रिप्लेस कर दिया, अल्फा ए डैश, और उसके बाद क्या कर दिया, उसके बाद इसको हमने नल से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे पहले क्या करेगा, बीटा आ जाएगा, उसके बाद अल्फा, और उसके बाद फिर से अल्फा, राइट, एंड देन नल ना। तो ये अल्फा अल्फा ऐसे आता जाएगा, मतलब अल्फा स्टार हो जाएगा। इज इट क्लियर? हाँ, लैंग्वेज इज बीटा अल्फा स्टार, ये वाली थी ना लैंग्वेज, बीटा अल्फा स्टार, तो बीटा अल्फा स्टार ही तो जनरेट कर रहा है। यस, टीओसी कर रखी है ना आपने, तो कंफ्यूजन तो होनी ही नहीं चाहिए। अभी अभी भी डाउट है क्या? हम्म, ग्रामर बनाई है ये मैंने, इस लैंग्वेज के कॉरस्पॉन्डिंग, लैंग्वेज तो ये वाली है बीटा अल्फा स्टार, तो इससे क्या क्या जनरेट हो सकता है, सिंगल बीटा हो सकता है, देन बीटा अल्फा हो सकता है, बीटा देन टू टाइम्स अल्फा एंड सो ऑन, ऐसे हो सकता है ना। कौन सा, ये वाला? ये तो मैंने बताया कि अगर ये वाली लैंग्वेज है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर क्या होगी, ये वाली होगी, ए देन अल्फा, ए अल्फा बीटा, ये लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है। बट हमने यहाँ पे क्या बनाई है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग राइट रिकर्सिव ग्रामर बनाई है, क्योंकि हमें पता है कि लेफ्ट रिकर्जन को क्या करना है, रिमूव करना है। तो वो कैसे करेंगे, है ना, तो उसको राइट राइट रिकर्सिव में हमने कन्वर्ट कर दिया। डन, यस, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट मान लीजिए कि ये वाली एक ग्रामर दे रखी है, ई गोज टू
e goes to e plus t, e plus t और t, e goes to e plus t और t। ठीक है, ये वाली ग्रामर दे रखी है। बताना ये ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव है या राइट रिकर्सिव है। दिस ग्रामर इज लेफ्ट रिकर्सिव और राइट रिकर्सिव। लेफ्ट रिकर्सिव, यस। सो दिस ग्रामर इज लेफ्ट रिकर्सिव बाय, बिकॉज इसका जो लेफ्ट मोस्ट जो सिंबल है और ये स्टार्टिंग सिंबल है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। यहाँ पे ये क्या हो गया, लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, राइट रिकर्सिव बनाना है ना। तो लेफ्ट रिकर्सिव से क्या करना है, रिमूवल करना है लेफ्ट रिकर्सन का। तो क्या बना देंगे, राइट रिकर्सिव बना देंगे। उसके लिए पैटर्न क्या होगा, ये वाला पैटर्न होगा। पहले इसको एसोसिएट करते हैं किसके साथ, इस वाली ग्रामर के साथ। ये लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है ना, इसके साथ एसोसिएट करते हैं। तो यहाँ पे जस्ट ए मिनट, हाँ। तो ये जो ए दे रखा है, इसका मतलब ये ई है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। और उसके बाद ये वाला ई है, ये भी ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद कुछ भी होगा वो क्या होगा, अल्फा होगा। इसका मतलब प्लस टी, ये क्या है, अल्फा है। और उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्शन में जो कुछ होगा वो क्या होगा, दैट इज़ द बीटा। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, इसके साथ मैपिंग कर दी, राइट। अब इसके साथ मैपिंग कर दी, अब इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे किया है इस तरीके से। तो क्या करें, ये जो ए था इसको किससे रिप्लेस कर दे, बीटा ए डैश से, है ना। ए को क्या कर दे, बीटा ए डैश से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे ए की जगह क्या है, ई। तो क्या करेंगे, ई को रिप्लेस करेंगे किससे, बीटा ई डैश से, ऐसा ही करेंगे। ठीक है, तो ई को रिप्लेस कर दिया बीटा ई डैश से। उसके बाद क्या किया, नेक्स्ट प्रोडक्शन में ये जो ए डैश था इसको यहाँ पे लेके आए, ए डैश। तो यहाँ पे ई डैश लेके आएंगे, ई डैश, ई डैश गोज टू वट, एल्फा ए डैश। एल्फा क्या है, एल्फा ये वाला है। तो इसका मतलब यहाँ पे एल्फा क्या है, प्लस टी, राइट। तो यहाँ पे एल्फा क्या होगा, प्लस टी। और इसको क्या, प्लस टी आ गया, ये एल्फा आ गया। उसके बाद क्या है, ए डैश। ए डैश यहाँ पे क्या होगा, ए डैश का मतलब ई डैश है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई डैश। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, नल। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, नल। तो फाइनली क्या कर दिया हमने, इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, राइट रिकर्सिव ग्रामर में। नाउ देर इज नो लेफ्ट रिकर्सन। ठीक है, तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, लेफ्ट रिकर्सन नहीं, कहीं पे भी नहीं है लेफ्ट रिकर्सन। ओके, सो इज इट क्लियर, या किसी को डाउट है। क्लियर, ओके फाइन। ठीक है, जस्ट ए मिनट। ओके, नाउ टेक दिस ग्रामर एंड कन्वर्ट इनटू लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर। ठीक है, तो ये वाली ग्रामर दे रखी है, एस गोज टू, सॉरी, ये ग्रामर दे रखी है, एस गोज टू एस जीरो वन एस, एस जीरो वन एस, एस जीरो, जस्ट ए मिनट, एस जीरो एस
1 again s, after that 0 1। ठीक है, ये वाली ग्रामर दे रखी है। तो ये वाली ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव है या राइट रिकर्सिव है, बताना। और इसको कन्वर्ट करके दिखाना, इसका रिमूवल करके दिखाना, लेफ्ट रिकर्जन कैसे रिमूव करेंगे। ओके, लेफ्ट रिकर्सिव है, राइट, ठीक है। बिकॉज ये वाला एस और ये वाला एस क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, मतलब क्या हो गया, लेफ्ट लेफ्ट रिकर्जन हो गया यहाँ पे। ओके चलो, ठीक है। आई थिंक लिखना तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा ये, तो मैं बना के दिखा देता हूँ। टाइप करना डिफ़िकल्ट होगा आई थिंक, बना देता हूँ मैं। तो यहाँ पे फर्स्टली क्या करेंगे, इस लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर के साथ इसको मैप किया जाएगा। यहाँ पे ये ए का मतलब ये एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे भी ए, और रिमेनिंग जो पोर्शन बच गया है ये क्या रहे, ये क्या है, दैट इज़ द एल्फा। और यहाँ पे ये वाला पोर्शन क्या है, दैट इज़ द बीटा। ठीक है, तो ये पोर्शन क्या रहेगा, बीटा। अब क्या करना है, हमने इसको मैप कर लिया, अब क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे किस टाइप से, जैसे कि यहाँ पे कन्वर्ट हो रखा है, राइट। तो इस ए को किससे रिप्लेस कर दिया, बीटा ए डैश से। तो एस को किससे रिप्लेस कर देंगे, बीटा एस डैश से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बीटा एस डैश। ओके, यहाँ पे बीटा की जगह क्या था भाई, टी था। टी कर लेना, जस्ट ए मिनट, मैंने बीटा ही लिख दिया यहाँ पे। बीटा की जगह क्या है, टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी ई डैश, राइट। यहाँ पे क्या होगा, एस को किससे रिप्लेस करेंगे, एस को रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, जैसे ए को रिप्लेस कर रहे हैं बीटा ए डैश से, तो इसको एस को रिप्लेस करेंगे एस, सॉरी, बीटा। बीटा क्या है, 0 1, 0 1। और उसके बाद क्या होगा, एस डैश, राइट। और एस डैश क्या जनरेट करेगा, एस डैश जनरेट करेगा, जैसे कि ये यहाँ पे कर रहा है, ए डैश एल्फा ए डैश, ए डैश एल्फा ए डैश। तो यहाँ पे एस डैश एल्फा, एल्फा क्या होगा, दैट इज 0 S 1 S, 0 S 1 S। और उसके बाद ए डैश, ए डैश का मतलब यहाँ पे एस डैश और नल, राइट, एस डैश और नल। तो फाइनली ये क्या हो गई, फाइनली हमने इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। नाउ दिस ग्रामर इज नॉट ए लेफ्ट रिकर्सिव। ठीक है, तो यहाँ से लेफ्ट रिकर्जन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है। यस, तो एक्चुअल में कर क्या रहे हैं यहाँ पे, ये जो एस था ना, इस एस, ये एस और ये एस, इसकी वजह से क्या बन रहा है, लेफ्ट रिकर्जन बन रहा है ना। तो हमने क्या करना है, हमने इस एस को रिप्लेस करना पड़ेगा किसी एस डैश के साथ, है ना। इस एस को रिप्लेस करना पड़ेगा किसी एस डैश के साथ। और डायरेक्टली ये क्या जनरेट कर रहा था, 0 1 जनरेट कर रहा है ना, एस क्या जनरेट कर रहा है, 0 1। तो पहले हमने क्या किया, 0 1, और उसके बाद इसको रिप्लेस किया किससे, एस डैश के साथ, राइट। अब एस डैश को क्या किया जा सकता है, नल से रिप्लेस किया जा सकता है। तो क्या क्या जनरेट कर पाएंगे, देखो एस, और उसके बाद ये जनरेट क्या कर रहा था, 0 1 और एस डैश, एस डैश को क्या कर दिया, नल से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ से क्या जनरेट हो जाएगा, 0 1। तो 0 1 तो हमने जनरेट कर लिया। अब क्या चाहिए, अब हमें ये वाला पोर्शन जनरेट करना है। ठीक है, तो इसमें
यहाँ पे क्या करेंगे फिर, ये जो एस डैश था, ये एस डैश फर्दर क्या जनरेट कर देगा, 0 S 1 S इसको जनरेट करेगा। और इसको जनरेट करने का मतलब क्या हो गया, इसकी जगह अगर मैं क्या कर दूं, 0 S 1 S इसकी जगह ए कर दूं तो क्या होगा, ए का लूप जनरेट कर रहा था ना, तो ये भी तो क्या कर रहा है, ये मान लीजिए ए है और ये क्या है, एस डैश है, तो ये बार बार एस डैश से रिप्लेस करेगा, तो ए का लूप ही तो जनरेट कर रहा है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्या करेगा, इसका लूप बना देगा, यहाँ पे भी तो लूप ही बन रहा था, और फाइनली ये क्या हो गया, नल हो गया, फाइनली रिप्लेस कर देंगे इससे। ये बन गई क्या, राइट रिकर्सिव ग्रामर। नाउ देर इज नो लेफ्ट रिकर्सन। सो इज इट क्लियर टू ऑल? Okay, now let's see the next one. Next is s goes to l comma s, l comma s और s, ठीक है। तो ये वाली ग्रामर दे रखी है। नाउ टेल मी, दिस ग्रामर इज लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर और राइट रिकर्सिव? ओके, और कौन से प्रोडक्शन से पता चल रहा है? ये प्रोडक्शन नंबर 1 हो गया मान लीजिए, सॉरी ये लाइन नंबर 1 और ये लाइन नंबर 2 हो गई। तो लाइन नंबर 1 से या 2 से? यस, ड्यू टू द लाइन नंबर 2, यहाँ पे ये एल और ये एल, राइट, इसकी वजह से क्या बन रहा है, लेफ्ट रिकर्जन बन रहा है, ठीक है। तो ये ग्रामर क्या है, लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है। यस, तो यहाँ पे इस वाले में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना, इन वाले प्रोडक्शंस में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब प्रॉब्लम कहाँ पे है, यहाँ पे आ रही है। तो अब क्या करें, इसको एसोसिएट कर देते हैं इससे, ठीक है। तो इसको एसोसिएट करते हैं, जस्ट ए मिनट। यस, वेट ए मिनट। ओके, नाउ लेट्स सी। तो ये वाला ए और यहाँ पे ये एल, दोनों क्या है, सेम चीज़ें हैं। और यहाँ पे ये एल और ये ए सेम है। इसके बाद कोमा और एस, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, अल्फा को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो एस है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज रिप्रेजेंटिंग बीटा। तो ये बीटा को रिप्रेजेंट करेगा, ये बीटा को रिप्रेजेंट करेगा। अब क्या कर सकते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग बना देते हैं राइट रिकर्सिव। तो कैसे बन जाएगी, ये जो ए था इसको क्या कर दिया, बीटा ए डैश से रिप्लेस कर दिया, है ना। तो यहाँ पे ए की जगह क्या है, एल, एल को किससे रिप्लेस कर दें, एस एल डैश से रिप्लेस कर देते हैं। एस, दैट एल कैन बी रिप्लेस्ड विद एस एल डैश। नाउ दिस एल डैश कैन बी रिप्लेस्ड विद एल डैश। एल डैश क्या रिप्लेस कर देंगे, ए डैश गोज टू एल्फा ए डैश। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एल डैश गोज टू एल्फा एल डैश। तो एल डैश गोज टू एल्फा, एल्फा क्या है,
अल्फा इज द कोमा एस, राइट। एंड उसके बाद क्या आ जाएगा, ए डैश की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे एल डैश, और यहाँ पे फिर फर्दर क्या हो जाएगा नल, राइट, नल। और इससे पहले क्या क्या प्रोडक्शन था, ये वाला एस गोज टू एल और एक्स। नाउ दिस इज व्हाट द ग्रामर, दिस इज व्हाट द फाइनल ग्रामर, जहाँ पे लेफ्ट रिकर्जन नहीं होगा, राइट। इट इज a राइट रिकर्सिव ग्रामर, there is no left recursion. Okay, so is it clear to all? Okay, fine. नेक्स्ट ये वाली ग्रामर दे रखी है, ए गोज टू ए, एल्फा वन, ए, एल्फा टू, ए, एल्फा थ्री, एंड सो ऑन, देन बीटा वन, बीटा टू, बीटा थ्री, and so on. In that case, what will be the recursive grammar, that is right recursive grammar, और we can say जहाँ पे left recursion नहीं होगा तो क्या करेंगे, it is a, just a minute, it will be a goes to beta 1, a dash, beta 2, a dash, beta 3, a dash, and so on. After that ये यहाँ पे क्या है, a dash that can be replaced with alpha 1 a dash, alpha 2 a dash, alpha 3 a dash, and so on, right. Finally this will be the that non left recursive grammar. Okay, तो इससे क्या बनेगा बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेटर वे में, ठीक है।